Hello students, welcome to Rajni classes. Today we are going to continue our exercise 3.3 of unit 3, playing with numbers. First question we have already done in our previous video. So we will start with question number 2. Only some of the parts I will explain you and remaining parts you have to do yourself. Okay, in notebook you have to complete all the questions, all the parts of a question, but we are just discussing some of them. Okay, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 and 8. I explained already for divisibility for 4 we have to look at these two digits. If these last two digits are divisible by 4, then the number is also divisible by 4. And for 8 we have to check 3 digits, last 3 digits. Okay, so in this question for 572, as we know 72 is divisible by 4. That means it is also divisible by 4. Since 72 is divisible by 4, that implies 572 is also divisible by 4. Now check 572 divisible by 8 or not. 8 6 are 48. Okay. 8 7 are 56 and remains 12. No. Okay. But 572 is not divisible by divisible. Okay, that means 572 is divisible by 8, but not by 8. Okay, this completes your first part. Second part, first you have to check 52. 52 is divisible by 4. That means you have to write since 52 is divisible by 4, that implies 726352 is also divisible by 4. Again check, is 352 divisible by 8? Yes. Also 352 is divisible by 8. That implies 726352 is also divisible by 8. ओके, तो इसमें ये 4 and 8 दोनों से डिविजिबल है, यहाँ पे सिर्फ 4 से डिविजिबल है, 8 से नहीं है. नाउ लास्ट 2 digits we have to check. 0 0 0 is also always divisible by every number. That implies since 0 0 is divisible by 4, that implies 5500 is also
divisible by 4. Okay. Now check 5 मतलब 5 is 500 divisible by 8? No. It is not divisible by 8. Now when you check yourself, you will find out that 500 is not divisible by 8. So you will write, since 500 is not divisible by 8, that implies 5500 is also not divisible by 8. Okay. Now fourth part, 6000. We know, अभी जैसे हमने ये किया 00 is divisible by 4, that means कि 5500 is also divisible by 8. तो again 00, since is divisible by 4 and 000 is divisible by 8. ठीक है, 00 divisible by 4 and 00 is divisible by 8. That implies 6000 is divisible by both 4 and 8. And now you have to complete question 2 yourself. Complete question 2 yourself. मतलब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके वो आपको खुद करने हैं. ओके, इट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन 2. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. Now start with question number 3. Okay. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 6. आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स डिविजिबल होंगे 6 से. लेट्स सी बेटा कि हमने क्वेश्चन ए पार्ट, बी, जी और जे पार्ट करे हैं मैंने. रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे. ओके. तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल होता है कि वो नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी होगा. अब 2 का तो बहुत इजी है कि हमें लास्ट डिजिट देखना है कि वो 0, 2, 4, 6, 8 में से है कि नहीं, तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा. और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स. तो हम पहले चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2. अगर 2 से वो नंबर डिविजिबल हो गया तो हम चेक करेंगे 3 से. अगर 2 से ही नहीं हुआ तो हमें 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 से होगा और 3 से नहीं होगा तो वो डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा. अगर 2 से और 3 से दोनों से होगा तभी वो डिविजिबल बाय 6 होगा. तो हमने 2 से चेक किया, अगर 2 से नहीं होगा तो दैट मीन्स दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6. Therefore, तो आप लिखेंगे सिंस 4 इज डिविजिबल. आप डायरेक्टली लिखिए बेटा. ठीक है, आप लिखिए इसको सीधा. 297144 इज डिविजिबल बाय 2. ओके. नाउ सम ऑफ डिजिट्स निकालिए. 2 plus 9 plus 7 plus 1 plus 4 plus 4. 11, 19, 20 and 28. Okay. 28 is not divisible by 3, since 28 is not divisible by 3. That implies 297144 is not divisible by
3. Hence, it is not divisible by 6. हमें 6 के लिए चेक करना है, अगर 2 और 3 दोनों से होगा तो ही 6 से होगा, नहीं तो नहीं होगा. सेकेंड पार्ट, as 6, 1, 2, 3, 3 is not divisible by 2. क्यों नहीं डिविजिबल है ये? क्योंकि इसका लास्ट वंस प्लेस डिजिट क्या है? 3. और 3 अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, दैट मीन्स ये पूरा भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा. और अगर ये 2 से ही नहीं डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. ओके, as 6, 1, 2, 3, 3 is not divisible by that implies 6, 1, 2, 3, 3 is not divisible by 6. Okay, next, as 1790184 is divisible by 2. 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 4 है और 4 2 से डिविजिबल होता है. ठीक है, अब इसका सम ऑफ डिजिट कर लो. 7, 1, 8, 8 and 9, 17, 18, 18 and 8, 26, 26 and 4, 30. Sum of digits is divisible by 3. So 1790184 is also divisible by 3, and which implies 1790184 is divisible by 6. ओके, ये लास्ट है, मतलब लास्ट है हमारे करने के लिए, लास्ट है. आपको तो रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं. ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 2 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2, एज 17852 is divisible by 2, and sum of digits कितना है? 7, 1, 8, 8, 8, 16, 16 and 7, 40, 23, 16 and 7, 23 ना. Sum of digits is not divisible by that implies 17852 is not divisible by okay. Now your work is complete. Question 3 yourself. Okay. बेटा जब हमें कोई टॉपिक क्लियर हो जाता है ना तो वी आर एबल टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन. हमें प्रैक्टिस के लिए खुद करना जरूरी है. ये जस्ट कॉपी करने से आपको नहीं आएगा. ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट जब आप खुद करेंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस होगी और आएगा. फिर भी अगर आपको कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन भेजिए. आई विल गिव यू सॉल्यूशंस आल्सो. ओके, बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. ओके, yes beta. Now next question is question number 4. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 11. फर्स्ट क्वेश्चन किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उतना नहीं होता अगर हम एक्सप्लेन करें तो प्रॉपरली. ओके, वन मोर थिंग, सिंस 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है तो मैं आपको सारे पार्ट्स कराऊंगी.
इसके. And this is the last question of this video. Okay, now you have to complete up to question 4. After this video, you have to do yourself all the questions so that you will understand the topic well. Okay, because practice makes the person perfect. Okay, let's start now. मैंने आपको बताया था कि हम ओड वाले डिजिट्स हैं जो उनको प्लस करेंगे, इवन वाले को भी प्लस करेंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11 की टेबल में आता होगा तो वो 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं. तो मैंने ऐसे रेड से ओड प्लेसेस को और ग्रीन से इवन प्लेसेस को पहले ही मार्क कर लिया है. ठीक है, तो पहला प्लेस ओड. सॉरी बेटा, हमने थोड़ा सा उल्टा किया है, हमें वंस प्लेस से ओड लेके चलना है ना. लेट्स, ये मैंने इसलिए भी किया कि आपको भी पता चले कि आप गलत कर रहे हो. ठीक है, तो ये ओड वाला हम रेड से मार्क कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये ओड, क्योंकि वंस प्लेस तो ओड होता है. देन ये इवन, ये ओड, और ये इवन. ठीक है, अब इसको भी चेक करो, ये ठीक है, ओड इवन ओड इवन ओड. ये ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड, ये ठीक है. नो, क्योंकि हमने उसको इवन से स्टार्ट किया है और हमें ओड से स्टार्ट करना है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो ये ओड, ये ओड, ये ओड, ये ओड. हालांकि आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आपने ओड प्लेसेस भी चेंज कर दिए और इवन भी, तो हमें तो उसका डिफरेंस चाहिए. लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए ना बेटा कि ओड प्लेसेस कौन से हैं और इवन प्लेसेस कौन से, है ना. लेट्स स्टार्ट. सम ऑफ ओड प्लेसेस. सम ऑफ ओड प्लेसेस आएगा, ओड नंबर्स नहीं, क्योंकि ओड प्लेस पे इवन नंबर भी हो सकते हैं, है ना. जैसे हमने ये ओड प्लेस लिखा है 4 है, ये नंबर तो इवन है ना बेटा. ठीक है, तो सम ऑफ ओड प्लेसेस कितना हुआ, 5 + 4 9. नाउ सम ऑफ इवन प्लेसेस. अगेन 5 + 4 9. डिफरेंस जीरो. 9 - 9 इज, ऐसे लिख लो, 9 - 9 0. Hence 5 4 4 5 is divisible by 11. डिफरेंस याद रखो, डिफरेंस 0 आएगा, 11 आएगा या 11 की टेबल में आएगा तो हमारा डिविजिबल बाय 11 होगा, नहीं तो नहीं. यहाँ पे 0 आया, डिविजिबल बाय 11. नाउ कम टू सेकंड पार्ट, सम ऑफ ओड प्लेसेस. करो ऐड. 4 8 and 1. 8 and 1 9 और 4 13. सम ऑफ इवन प्लेसेस. 2 and 0. तो 2 डिफरेंस 13 - 2 दैट इज 11. 11 आ गया, इट मीन्स 11 से डिवाइड हो रहा है, तो हेंस 10824 is divisible by 11. Okay, now come to next one. Sum of, marker नहीं चल रहा है, let's change it. Sum of odd places. 5 9, इधर से करिए चाहिए, 7 + 3 10, 19 19 and 5 24.
Sum of even places. करिए 1, 8 and 1 9, 9 and 6, 9 and 6 15. दोबारा कर लीजिए, ये है इवन 1, 8 and 6, तो 6 and 8 14 onward 15. Difference 24 minus 15 9. Hence it is not divisible by 11. It is not divisible by 11. Hence 7 1 3 8 9 6 5 is not divisible by 11. Divisible, यहाँ पे ऐसा ही आएगा, सॉरी स्पेस भी नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट करिए. सम ऑफ ओड प्लेसेस. करिए ओड का ऐड 8 3, 8 and 3 11, 11 and 6 17 ही आएगा. ठीक है, मार्कर सारे ही नहीं चल रहे शायद. एंड सम ऑफ, हाँ ये ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेसेस. इवन का ऐड कीजिए 0 and 9 and 1 and 7, 7 and 1 8, 8 and 9 17. Difference 0. Difference 0. It means it is divisible by 11. Hence 7 0 1 6 9 3 0 8 is divisible by 11. Okay. Now ई पार्ट बेटा ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है. तो सम ऑफ odd places 1 0 0 0 मतलब 1. सम ऑफ इवन प्लेसेस ये भी अगेन 0 0 0 1 तो 1. डिफरेंस 1 minus 1 0. So hence it is divisible by 11. Okay. Now this one, sum of odd places. Three, 4, 0. So 4, sum of even places. 5, 1 6, 9 and 6 15. Difference 15 minus 4, that is 11. 11 is divisible by 11. So hence 901153 is divisible by 11. It completes your question 4, and today we are just doing up to question 4, and so revise it well and like my videos and subscribe my channel if you are new one on my channel. Okay.